Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject, and we will continue our sum. Example number 7. Following details are available about Patel Chemical. Sources is given and the amount is given. Equity share capital, each share of rupees 10 lakhs. 11% preference shares, each share of rupees 100, 2 lakhs amount. Reserve and surplus 18 lakhs, 15% is debenture, each debenture of rupees 100, 20 lakhs. On equity share, the next year expected rate of dividend is 20%. The growth rate of the earning is 10%. The current market price of equity share is rupees 25. Assume that cost of retained earning is 3% less than the cost of equity capital. The current market price of the preference shares and the debenture are rupees 60 and rupees 69 respectively. The tax rate applicable to the company is 60%. Calculate overall cost of capital on the basis of book value as well as market value. Clear? दोनों करना है. Now पहले बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगा. इक्विटी शेयर है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा. प्रेफरेंस शेयर है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा. रिजर्व एंड सरप्लस बुक वैल्यू भी करना है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आएगा. एंड द डिबेंचर है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आएगा. क्लियर? चलो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के ई. फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग के. नाउ के फॉर्मूला क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड वाला है तो D1 अपॉन PO प्लस G है ना. नाउ इन दिस सम ऑन इक्विटी शेयर the next year expected rate of dividend is 20%. And D1 20% is given. The growth rate rupees नहीं है 20% है. The growth rate of the earning is 10% यानी G 10%. The current market price of equity share 25 यानी P0 is given 25. Clear? Now बाकी इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. अभी इक्विटी शेयर कैपिटल ईच शेयर ऑफ रुपीज 10 यानी फेस वैल्यू इज गिवन. फेस वैल्यू इज व्हाट 10 रुपीज. ना आपको पता है डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो 10 का 20% D1 क्या होगा 2 आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू. 10 का 20% निकालना है. सो 10 का 20% क्या आएगा 2. सो के का फॉर्मूला क्या है D1 2 PO 25 प्लस ग्रोथ रेट 0.0 सॉरी 10 है ना तो 0.10. नाउ 2 डिवाइडेड बाय 25 0.08 प्लस 0.10. सो आंसर क्या आएगा 0.18. दैट इज व्हाट 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया. क्लियर? नेक्स्ट assume that cost of retained earning is 3% less than the cost of equity capital. Okay, so यहाँ पे स्पेसिफिक दिया कि KR क्या है. cost of retained earning is KR is what 3% less than cost of equity. Okay, so here KE कितना आया 18% यानी 0.18 माइनस 3% लेस 3% यानी 0.03. ओके, सो आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या आएगा 0.15. दैट इज व्हाट 15%. क्लियर? 18% और 3% लेस ऑफ नहीं है लेस देन. 18 से 3% लेस है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18 है सो 18 से 3% लेस है. ओके, सो कितना है डायरेक्टली क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज व्हाट 15%. क्लियर? देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. सो KP आएगा. सेकंड में KR फाइंड आउट किया. थर्ड में KP. now cost of preference shares में क्या दिया the current market price of the preference shares and the debenture are 60 and 69. now maturity period is not given so simple से आपका irredeemable. so KP is what DP upon SP
क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इन दिस सम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया है? 11%. Face value of the preference shares 100. Okay, and current market price is given preference shares ka, that is what? 60. Now preference dividend is calculated on face value. Okay, so dividend preference dividend कितना आएगा? 11 रुपीस आएगा. Clear? So 11 divided by SP 60 ना. Net sale proceed is given. So 11 divided by 60 0.1833. Clear? चलो नेक्स्ट फोर्थ, कॉस्ट ऑफ डेप. सो KD, सो KD का फॉर्मूला, ओके, KD द डिबेंचर आर 60 and 69. सो डिबेंचर 69 आया. ओके, नाउ डिबेंचर के बारे में 15% डिबेंचर. सो अगेन इरिडीमेबल. सो इरिडीमेबल का फॉर्मूला I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन SP है ना. चलो I इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया? 15%. Then face value of debenture 100. Clear? Selling price of the debenture 69. The tax rate is also given na 60%. हो गया. Now I interest is calculated on face value, so 15 आएगा. So 15 into bracket 1 minus tax rate 0.60 divided by SP 69. Clear? Now 15 इंटू 0.40 हो जाएगा. 15 इंटू 0.40 होगा डिवाइडेड बाय 69. ओके, सो डिवीजन करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 69 इज इक्वल टू व्हाट? 0.087 आएगा. क्लियर? सो ये भी इरिडीमेबल डिबेंचर था. नंबर ऑफ ईयर मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन. सो KE कैलकुलेट हो गया, KP हो गया, KRB हो गया एंड KDB हो गया. सो डायरेक्टली WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एज वेल एज मार्केट वैल्यू. सो WACC एज पर बुक वैल्यू वेट. आपको पता होना चाहिए सोर्सेस, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, देन वेटेड कॉस्ट. सोर्सेस में क्या है? इक्विटी शेयर है. सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स है. थर्ड रिटेन्ड अर्निंग है. एंड फोर्थ डिबेंचर है ना. बुक वैल्यू वेट है. सो इक्विटी का अमाउंट कितना है? 10 लाख. प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख. रिटेन अर्निंग 18 lakhs and debenture 20 lakh. Okay, so 50 lakhs आएगा टोटल. Now 10 lakh divided by 50 lakh, that is what? 20%. 2 lakh divided by 50 lakh, 4%. 18 lakh divided by 50 lakh, 36%. 20 lakh divided by 50 lakh, that is what? 40%. आया समझ में? सो 10 lakh divided by 50 करना पड़ेगा. 2 lakh divided by 50 lakh, 18 lakh divided by 50 lakh, and then 20 lakh divided by 50 lakh. Clear? नेक्स्ट कॉस्ट इक्विटी का 18% आया था. देन प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कितना आया था? 0.1833. रिटेन अर्निंग 0.15 एंड डिबेंचर 0.087. सो मल्टीप्लाई करो. 0.036, 0.0073, 0.054 and 0.0348. So total of that 0.1321. So WACC is equal to 0.1321 into 100, 13.21%. Clear?
चलो नेक्स्ट, WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट. सो मार्केट वैल्यू वेट, सोर्सेस, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट. सोर्स मार्केट वैल्यू है तो इक्विटी तो आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, बट रिटेन अर्निंग नहीं आएगा. तो नेक्स्ट क्या आएगा? ओनली डिबेंचर. क्लियर ना. मार्केट वैल्यू वेट है तो मार्केट वैल्यू वेट के लिए आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट में मार्केट वैल्यू निकालेंगे. चलो फर्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. किससे मिलता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलता है ना. चलो करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर सम्स में दिया है ना 25 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू था ना. सो बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स 10 लाख है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 है. सो 1 लाख आएगा. क्लियर. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? 25 lakhs. क्लियर. हम लोग ने आगे किया है, यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस जैसा है. सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे. सो करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ना मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है? 60 है ना. एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे मिलेगा? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. सो बुक वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख. 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 फेस वैल्यू. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 2000 होगा. ओके. सो 1,20,000 आएगा. क्लियर. ये कहाँ से आया आपको पता चलेगा ना. 2000 कहाँ से आया? 2000 कहाँ से आया? 2 लाख उसका फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 2 लाख बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100. सो 1,20,000 आया. 1,20,000. एंड लास्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर. The market value of debenture. So directly market price of the debenture 69 है. Clear. Into debenture, number of debentures 20 lakh book value divided by 100 face value. So 20 lakh divided by 100, that is what? 20,000. Okay. तो आपका आंसर आएगा 13,80,000. अभी 20,000 कहाँ से है? उसका वर्किंग नोट 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100 बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. क्लियर. सो 13,80,000. चलो उसका टोटल करो. 25, 120, 1380, दैट इज व्हाट? 40 lakhs. प्रपोर्शन निकालो. सो डायरेक्टली आ जाता है कैलकुलेटर में. 25 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख. सो 0.625 डायरेक्टली आएगा. 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख 0.03. एंड 13,80,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख 0.345. सो टोटल डायरेक्टली आया. हम लोग को कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर का कॉस्ट 0.18, प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट एज यूजुअल 1833 एंड द डिबेंचर 0.087. क्लियर. मल्टीप्लाई करो 0.1125 0.005490 शायद. नहीं. ओके. एंड उसका आंसर 0.030015.
आप कन्वर्ट कर सकते हो आप 5 डिजिट में, वो पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो WCC इज व्हाट 0.1480 into 100, that is what 14.80%. Clear all of you? So हम लोग का ये आंसर नंबर 7 कंप्लीट. Clear? Bye. Next sum in next video.